A radioactive isotope has a half-life of 5 years. A radioactive isotope has a half-life of 5 years. A radioactive isotope has a half-life of 5 years. Full stop. After a given amount decays for 15 years. After a given amount decays for 15 years. After a given amount decays for 50 years. 15 years. After a given amount decays for 15 years, what fraction of the original isotope remains? What fraction of the original isotope remains? Next question. What fraction of the original isotope remains? Second question. A piece of wood was found to have. A piece of wood was found to have. A piece of wood was found to have carbon 14 by carbon 12, C14 by C14 by C12 ratio. A piece of wood was found to have C14 by C12 ratio 0.6 times that in a living plant. 0.6 times that in a living plant. Half-life of carbon 14 is 5760 years. Half-life of carbon 14 is 5760 years. Half-life of carbon 14 is 5760 years. Calculate the period when plant died. Calculate the period when the plant died. 5760 years. Calculate the period when the plant died. अगला सवाल. पोलोनियम 210 84. अरे पियो लिख पियो. पोलोनियम पियो ऊपर 210 और नीचे 84. पोलोनियम 210 84 decays with alpha particle into, decays by alpha particle into polonium 210 84 decays by alpha particle into lead Pb 206 82 Pb 206 82 with a half-life of 138.4 days. With a half-life of 138.4 days. 138.4 days. With a half-life of 138.4 days. Full stop. If 1 gram of polonium is placed in a sealed container, if 1 gram of polonium is taken, if 1 gram of polonium is taken in a sealed container, how much of helium will be? How much of helium gas will be accumulated in 69.2 days? How much of helium gas will be accumulated in 69.2 days at STP? At STP, how much of helium gas will be accumulated? In 69.2 days at STP. At STP. अगला सवाल. An experiment requires minimum beta activity. An experiment requires minimum beta activity. An experiment requires minimum beta activity produced at a rate of. An experiment requires minimum beta activity produced at a rate of 346 beta particles per minute. Produced at a rate of 346 beta particle per minute.
half life of molybdenum MO 9942 is half life of MO 9942 is 66.6 hours, 66.6 hours, and is a beta emitter, full stop. Find the minimum amount of molybdenum required to carry out. Find the minimum amount of molybdenum, MO. Find the minimum amount of MO required to carry out the experiment. To carry out the experiment in 6.909 hours. Experiment in 6.909 hours. 6.909 hours. Clear? ठीक है, एक और लिखो, उसके बाद फिर हम बताएंगे. हाँ, a sample of uranium was found to contain. A sample of uranium was found to contain lead 206 is to uranium 238. Was found to contain, a sample of uranium was found to contain lead 206 is to uranium 238 in a mass ratio. Mass ratio दे रखा है 0.008 is to 1. 0.008 is to 1 mass ratio दे रखा है. Estimate the age of the mineral. Half-life of uranium 238 is 4.51 into 10 to the power 9 years. Half-life of uranium 238 is 4.51 into 10 to the power 9 years. चलो इतना करो पहले का आंसर कितना? पहले का आंसर भाई मैंने फ्रैक्शन पूछ रहा है तो A0/8 क्यों बोल रहे हो? 1/8 बोलेंगे. अगर एक रेडियो आइसोटोप का हाफ लाइफ अगर 5 इयर्स है तो अगर एक सैंपल हम लिए तो 15 साल के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा? तो आपको शायद बताया होगा कि द अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट इज ऑलवेज 1/2 to the power n times Na0 है कि नहीं? वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ. 15 साल में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे? 3. 15 साल में हाफ लाइफ 3 हो जाएंगे तो 1/2 to the power 3 into A0. 1/8 into A0 कितना बचेगा? 1/8 बचेगा. आंसर. अगला next question. A piece of wood was found to have carbon 14 by carbon 12 ratio 0.6 times that in a living plant. Calculate the 6912. देखते हैं आंसर, तुम्हारे पास नहीं है अभी. Calculate the period when the plant died. कार्बन 14 का हाफ लाइफ दे रखा है. जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रकार का एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से. कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कार्बन 14 भी एब्जॉर्ब करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कार्बन 12 भी एब्जॉर्ब करता है. मेटाबॉलिज्म के दौरान दोनों का इस्तेमाल होता है प्लांट में. समझ आ रहा है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है कार्बन 14 के साथ. एक तरफ से कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट करता है और एक तरफ से कार्बन 14 एब्जॉर्ब भी हो रहा है. तो कार्बन 14 बाई कार्बन 12 का रेशियो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कांस्टेंट होता है. जैसे ही उसका आफ्टर डेथ मेटाबॉलिज्म विल स्टॉप, ओनली द डीके विल हैपन. वो कार्बन डाइऑक्साइड अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा रेडियो एक्टिव वाला, सिर्फ डीके चलता. डीके होने के कारण उसका रेशियो जो है वो घटता है. तो लिविंग प्लांट में अगर वो रेशियो 1 था तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द प्लांट डेथ द रेशियो हैज बिकम 0.06. रिलेटिव हैज बिकम 0.06.
0.6 टाइम्स इन अ लिविंग प्लांट। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? सीधे सीधे फॉर्मूला यही लगाएंगे, K मल्टीप्लाइड बाई T विल बी इक्वल टू ln ऑफ कार्बन 14 बाई कार्बन 12 का रेशियो इन अ लिविंग को ही तो टाइम 0 मानते, जिस वक्त डेथ किया उसी वक्त टाइम 0 है ना, और डिवाइडेड बाई कार्बन 14 बाई कार्बन 12 का रेशियो इन अ फॉसिल या टिश्यू डेड, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा कि कार्बन 12 वाला पार्ट कट जाएगा, क्योंकि कार्बन 12 का क्वांटिटी तो डेड वाले में और लिविंग वाले में बराबर ही होगा। फर्क तो आता है कार्बन 14 की वजह से। तो कार्बन 12 कट गया, तो एक तरह से हो गया कार्बन 14 का क्वांटिटी इन अ लिविंग डिवाइडेड बाई कार्बन 14 का क्वांटिटी विच इज लेफ्ट इन अ डेड। A0 बाई A ही तो आ गया एक तरह से, या N0 बाई N तो आ गया एक तरह से। समझ में आ रहा? सीधे ln का वैल्यू कितना बिठाएंगे यहां पर? 1 अपॉन 0.6 दैट इज K 0.693 अपॉन 5760 मल्टीप्लाइड बाई T। इससे निकलेगा आंसर। समझ में आ रहा? ऐसे किए थे आप? नो सर। वन अपॉन 0.6 का लॉग ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। Polonium decays with a alpha particle into lead 206, ये वाला। कभी कभी ना कार्बन डेटिंग में ऐसे एक तो तरीका है रेशियो देने का, तो सीधे रेशियो इन अ लिविंग अपॉन रेशियो इन अ डेड बिठा देते हैं हम लोग। ये समझ में आया? रेशियो इन अ लिविंग अपॉन रेशियो इन अ डेड। कभी कभी ऐसे देगा, द कार्बन 14 एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड इन अ लिविंग प्लांट वाज दिस मच एंड द सेम कार्बन 14 एक्टिविटी इन अ डेड प्लांट वाज ऑब्जर्व्ड दिस मच। तो सीधे एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी बिठाएंगे, क्योंकि लिविंग में जो है एक्टिविटी कांस्टेंट होगा। वो जब टाइम t इक्वल टू 0 कब मान रहे? जब वो डेथ किया उस वक्त एक्टिविटी क्या होगा? द सेम इन द लिविंग प्लांट। और टाइम के अनुसार उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? घटती चली गई। A0 बाई AT वेयर A इज एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगला सवाल, पोलोनियम डिकेज विद अल्फा पार्टिकल लेड 206 विद हाफ लाइफ 138.4 डेज। 1 ग्राम पोलोनियम को लिए तो 69.2 डेज के बाद कितना हीलियम गैस कलेक्ट होगा एट STP? सबसे पहले प्रोसेस लिखो, बैलेंस करो। प्रोसेस लिखो, बैलेंस करो। अल्टीमेटली कितने अल्फा पार्टिकल दिया एक पोलोनियम का न्यूक्लियस ने? लेड तक आते आते कितना देगा? तो 10 से हो गया 6, ये कितना दर है? 84। तो कितना हीलियम दिया ये? 1, 4 और 2। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल में यहां 3 बनाना पड़ जाए, ऐसा न्यूक्लियस दे देगा कि 3 हीलियम के पार्टिकल निकल गए। अरे जैसा 1 के लिए करेंगे वैसा 3 के लिए करेंगे। 1 मोल दे रहा है, उसके से बोलते 1 मोल 3 मोल दे रहा है कि नहीं? 1 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ओके। कितना ग्राम पोलोनियम लिए थे? 1 ग्राम लिए थे। दिस इज M0। दिस इज M0। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पोलोनियम कितना बच गया, कितने दिन के बाद? 69.2 डेज के बाद। 69.2 डेज के बाद पोलोनियम कितना बच गया वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने इसको मोल में कन्वर्ट किया, फिर नंबर में कन्वर्ट किया। वी कैन यूज इन द ln नंबर अपॉन नंबर, मोल अपॉन मोल, मास अपॉन मास। बहुत तरीका हो सकता है सवालों करने का। हम मास से सीधे कर रहे हैं। ln ऑफ 1 अपॉन मास ऑफ पोलोनियम लेफ्ट विल बी इक्वल टू K 0.693 बाई लैम्डा हाफ लाइफ 138.4। कितने दिन के बाद बोला? 69.2 डेज के बाद बोला। लैम्डा इंटू T, ln ऑफ M0 अपॉन M इक्वल टू लैम्डा इंटू T। 69.2 कट गया 2 से,
ये क्या है ln2/2, ln2/2 √2, 1/m इज √2 बेटा, √2। ये 0693/2 है ना, तो अल्टीमेटली 1/2 ln2 है ना ये, तो 1/2 जाएगा ना अंदर, √2, 1/m इज √2, m निकल गया, 1/√2, 1/1.414, हाउ मच? 0.707, 1 divided by √2, 1 divided by 1.414, 0.707, 0.707 ग्राम बच गया। तो हम निकालेंगे मास रिएक्टेड विल बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 0.707, 1 माइनस ऑफ 0.707, ये आएगा कितना आ रहा है? कितना? 0.293, 0.293 mass reacted. Okay, moles reacted is how much? 0.293 upon 210। देख हम किसका एटॉमिक वेट का इस्तेमाल किए, पोलोनियम का कितना मोल रिएक्ट किया ये पता चल गया। और एक मोल हमेशा एक मोल हीलियम देगा, हमेशा एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। समझ में आ रहा बात? तो moles of helium will be also 0.293 upon 210. Therefore, volume of helium collected at STP will be 0.293 upon 210 multiplied by 22.4 liters. Answer. Clear? सवाल करने का तरीका समझ में आया? क्लियर है? अगला सवाल अच्छा सवाल है, यही आखिरी है क्या? हाँ ठीक है, करो। An experiment requires a minimum beta activity at a rate of 346 beta particle per minute. कोई भी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको रेडियो एक्टिविटी का रेज चाहिए होता है, इसमें 346 बीटा पार्टिकल पर मिनट जाएगा ना, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 346 जाए या उससे ज्यादा जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 346 बीटा पार्टिकल पर मिनट। अगर 1000 जाएगा तब भी एक्सपेरिमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इट रिक्वायर्स अ मिनिमम बीटा एक्टिविटी 346 बीटा पार्टिकल पर मिनट। ये बीटा पार्टिकल ले कहां से रहा है? ले रहा है मॉलिब्डेनम से। मॉलिब्डेनम डीके कर रहा है और बीटा पार्टिकल दे रहा है। जब कुछ भी नहीं है तो एक मॉलिब्डेनम का न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल देगा, ध्यान रखना ये चीज। समझ में आ रहा बात? ये मॉलिब्डेनम प्रोवाइड कर रहा है। तो सवाल पूछ रहा है कि कितना मॉलिब्डेनम हम शुरू में लें ताकि अनइंटरप्टेड ये एक्सपेरिमेंट 6.909 आवर तक चलता ही चला जाए। कितना मॉलिब्डेनम लें ताकि ये एक्सपेरिमेंट बिना किसी रुकावट के 6.909 आवर्स तक चले। What should be the minimum amount of molybdenum to be taken such that required to carry out the experiment in 6.909 hours? हाफ लाइफ मॉलिब्डेनम का दे रखा 66.6 आवर। तो आप ऐसे समझो कि मॉलिब्डेनम मान लो हम m ग्राम लिए, m ग्राम मॉलिब्डेनम वॉज टेकन, m ग्राम। तो m ग्राम जो लेंगे उस वक्त भी उसकी कुछ एक्टिविटी होगी, लैम्डा इंटू एन। एक्टिविटी इज व्हाट? लैम्डा इंटू एन माइनस dN/dt को ही तो एक्टिविटी कहते हैं। उस वक्त उसकी कुछ एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी 6.909 आवर में घटते घटते 346 होना चाहिए। जिस रेट से मॉलिब्डेनम का न्यूक्लियस डीके होगा उसी रेट से तो बीटा पार्टिकल भी मिलेगा ना। अगर 10 मॉलिब्डेनम का न्यूक्लियस डीके किया पर मिनट तो 10 बीटा का पार्टिकल मिला पर मिनट। समझ में आ रहा है? तो अगर हम m ग्राम मॉलिब्डेनम लेते हैं शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 में, दैट मीन्स आफ्टर 6.909 आवर्स
After 6.909 hour, the activity should become 346 per minute. 346 disintegrations per minute. 346 disintegrations per minute होगा तब जाके ही 346 बीटा पार्टिकल पर मिनट मिलेगा, क्योंकि एक मॉलिब्डेनम का न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल देता है। हम लोग स्पेस में जो भेजते हैं ना स्पेस क्राफ्ट, ये वो, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल जाता है, तो कैलकुलेटेड अमाउंट डाल के भेजा जाता है। ऐसा थोड़ी कि कोई इंसान फिर जाकर उसको रिफ्यूल करेगा, उसको रिफिलिंग करेगा। हाँ भाई ये 10 साल तक चलना चाहिए, तो कैलकुलेटेड है पूरा, इतना डाल दो, 10 साल तक उसको पावर मिलते रहेगा। समझ में आया? एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, समझ में आ रहा है? ये m ग्राम लिए तो कितना मोल लिए? m/99। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर कर दिए, देन दिस विल रिप्रेजेंट n0। शुरू में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा? क्लियर है? इस n0 में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिए। लैम्डा क्या है? 0.693/66.6। दिस विल बिकम a0, या बोलो माइनस ऑफ dn/dt एट टाइम t = 0। मिनट्स में कन्वर्ट, हाँ बिल्कुल, क्या कि ये पर मिनट है, वो आवर में है, इंटू 60। तो लैम्डा इंटू n ऑलवेज गिव्स व्हाट? माइनस dn/dt। माइनस dn/dt इज व्हाट? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जिस रेट से डिसइंटीग्रेट करेगा उसी रेट से बीटा पार्टिकल मिलेगा, है कि नहीं? ये हो गया उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कब? टाइम t = 0 पे। एंड आफ्टर टाइम 6.909 आवर द एक्टिविटी शुड बी 346 पर मिनट, तब जाके ही मिलेगा 346 बीटा पार्टिकल पर मिनट। बिठा दे के या लैम्डा इंटू टी शुड बी इक्वल टू 2.303 log to the base 10। कभी कभी ऐसा नंबर काटने के लिए दिया जाता है, ln के बदले log to the base 10। a0/a, एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी। व्हाट वाज द इनिशियल एक्टिविटी? m/99 into Avogadro number into 0.693/60 into 66.6 divided by 346। सॉल्व करेंगे, m निकालेंगे। अगला सवाल, a sample of uranium was found to contain lead and uranium-238 in a mass ratio 0.008:1. Estimate the age of mineral. Half life is given. Half life is given 4.51 into 10 to the power 9 years, and lead 206:2, यूरेनियम 238 का रेशियो दे रखा है 0.008:1। व्हाट इज द एज ऑफ द मिनरल? इसका भी कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं कि जब अर्थ बना था तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिर्फ यूरेनियम 238 था, और जैसे जैसे समय बीतता गया यूरेनियम 238 का डिसइंटीग्रेशन से लेड 206 बनता चला गया, है कि नहीं? तो अगर इन दोनों का मास रेशियो दे रखा है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनीवे, हम तुमको नंबर ऑफ न्यूक्लियस में तो समझा दिए थे कि अगर n1 इसका है, n2 इसका है, तो बिगिनिंग में n1 + n2, लेकिन वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस था, मास नहीं था। मास को आप थोड़ी जोड़ सकते हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियस को जोड़ा जा सकता है या नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर ये मास रेशियो है तो हम निकालेंगे मोल रेशियो। मोल रेशियो कितना होना चाहिए? मोल रेशियो होना चाहिए 0.008 डिवाइडेड बाई 206 1/238। ये निकला मोल रेशियो। क्लियर है?
ये निकला मोल रेशियो। ओके, दिस इज बेसिकली मोल्स ऑफ लेड 206 अपॉन मोल्स ऑफ यूरेनियम 238, which is 0.008 upon 206 divided by 1 upon 238। ये निकला मोल का रेशियो। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, +1 इधर भी +1, तो इट विल बिकम n of uranium 238 plus n of lead 206 divided by n of uranium 238, which will be equal to 0.008 upon 206 plus 1 upon 238 divided by 1 upon 238। ये आएगा। अब तुम खुद ही बताओ कि ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों का सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ में आ रहा है ये बात? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल इनिशियल यूरेनियम का मोल्स ऑफ यूरेनियम, N0 ऑफ यूरेनियम 238, है कि नहीं? अगर ये 5 मोल है और ये 4 मोल है मान ले, तो ये 4 मोल यहीं से आया है ना। तो टोटल यूरेनियम पहले कितना था? 9 मोल था। तो दोनों का सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सीधे सीधे इनिशियली हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरेनियम वाज देयर? दिस मच। हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरेनियम इज नाउ प्रेजेंट? दिस मच। अल्टीमेटली लॉग में बिठाने के लिए जो टर्म है ना, अपने आप तैयार हो गया, N0/N तैयार हो गया। सिंपली लैम्डा 0.693 अपॉन 4.51 इंटू 10⁹9 into T will be equal to ln of N0 of U अपॉन N of U, जो कि ये वैल्यू आ चुका है। ये वैल्यू का यहां पर सीधे बिठा देना और T निकाल लेना, एज ऑफ अर्थ पता चल जाएगा। समझ में आया ये सवाल? क्लियर है? सवाल लिखिए। सवाल लिखिए। अब पोलोनियम न्यूक्लियस, पोलोनियम 210-84, अब पोलोनियम न्यूक्लियस, पोलोनियम 210-84 emits an alpha particle, emits an alpha particle, emits an alpha particle and gives lead 206-82, gives lead 206-82, Pb 206-82. The reaction is used for electricity. The reaction is used for producing electricity. The reaction is used for producing electrical power in a space. The reaction is used for producing electrical power in a space. Polonium has a half-life of 138.6 days. Polonium has a half-life of 138.6 days. Assuming an efficiency of 10%, assuming an efficiency of 10%, how much polonium, assuming an efficiency of 10%, how much polonium is required to produce? How much of polonium is required to produce? 1.2 into 10 to the power 7 joule, 1.2 into 10 to the power 7 joule of electrical energy per day, 1.2 into 10 to the power 7 joule of electrical energy per day at the end of 693 days. At the end of 693 days. At the end of 693 days. Given polonium 210 का atomic mass 209.983, 209.982 AMU पोलोनियम का दिया हुआ है। लेड का दिया हुआ है 206 लेड का दे रखा है, ये 205.97 और हीलियम 4 का भी दे रखा है 4.0026 एटॉमिक मास दिया हुआ है।
कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, उसका हाफ लाइफ दे दिया, सारा डेटा दिया हुआ है। हाउ मच टोटल डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस हैज हैपेंड एट द 10th डे? हाउ मच ऑफ टोटल डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस हैज हैपेंड एट द 10th? 10वां दिन में टोटल कितना डिसइंटीग्रेट किया? तो कोई बात नहीं, 9 दिन के बाद कितना बचा है ये निकालेंगे, है कि नहीं? और 10 दिन के कंप्लीट होने के बाद कितना निकाले बचा पता करेंगे। फॉर्मूला वही है, लैम्डा टी इक्वल टू ln of n नॉट अपॉन n। 9 दिन के बाद कितना बचा है निकालेंगे, 10 दिन के बाद कितना बचा है निकालेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 10वां दिन टोटल डिसइंटीग्रेशन उतने का हुआ, है कि नहीं है? सॉल्व करो जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले तो बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो। पोलोनियम 210 84 is converted into lead 206 82 plus emitting a helium particle 4 and 2। और इसी रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है। ये रिएक्शन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्यों प्रोवाइड कर रहा है? मास डिफेक्ट। तो टॉपिक का फील आएगा तो आंसर भी आएगा, मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले तो डेल्टा एम निकालेंगे। सबसे पहले तो डेल्टा एम निकाला जाएगा। डेल्टा एम कितना आएगा? 209.9826 माइनस ऑफ 205.97 माइनस ऑफ 4.0026, ये आएगा डेल्टा एम। वैल्यू निकालो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। 0.01। अरे इतना कम, वेरी गुड। 0.01 AMU, 0.01 AMU. Okay, the energy liberated will be how much? 0.01 multiplied by 931.5, which will be equal to 9.315 MeV. Itna energy is liberated. But remember, this much energy is liberated when one nucleus of polonium has decayed. When one nucleus of polonium has decayed. How much polonium is required to produce 1.2 into 10 to the power 7 joule of the electrical energy per day at the end of 693 days? Okay. At the end of 693 days, the energy required is how much? 1.27 into 10 की power 7 जूल। इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एट द एंड ऑफ 693 डेज पर डे। इतना एनर्जी पर डे मेरे को मिलना चाहिए। और हमें पता है कि एक जब न्यूक्लियस डीके करता है तो कितना एनर्जी निकलता है, ठीक है। अब इस एनर्जी, ये तो एनर्जी जो है वो 10% ऑफ द एमिटेड एनर्जी है। सो एट द एंड ऑफ 693 डेज emitted energy will be how much? Emitted energy will be how much? 1.27 into 10 की power 7 divided by 0.1, क्योंकि 10% of the emitted energy will be converted into electrical power। 10% efficiency है ना, तो 10 by 100 of the emitted energy, माने 0.1 of the emitted energy is the electrical power। So emitted energy should be how much? This much, so it will become how much? 10 की पावर अल्टीमेट हो यार तुम लोग। 10 की पावर 8 जूल पर डे। इतना एनर्जी आना चाहिए। इतना एनर्जी आने के लिए कितने एमिशंस होने चाहिए? तो यार पर एमिशन तो आता 9.315। सो नंबर ऑफ डिके per day
will be equal to 1.27 into 10 to the power minus 8 divided by 9.315 into 10 to the power 6 into 1.602 into 10 to the power minus 19. नीचे जूल पर डीके इतना जूल चाहिए एमिशन से, और इसका 10% इतना हो जाएगा। ये सब कहानी कब का लिख रहे बेटा? 693 डेज के बाद वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इतना 693th डे जब खत्म होगा ना, तो इतना एनर्जी पर डे एमिट होना चाहिए, इतना एमिशंस होने चाहिए। दैट मीन्स दिस इज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ डीके पर डे क्या है? एक्टिविटी माइनस dN by dt, माइनस dN by dt का वैल्यू, ए का वैल्यू 693 दिन के बाद इतना होना चाहिए। वही मिनिमम बीटा पार्टिकल वाला ही सवाल एक तरह से है कि नहीं? बोल रहा शुरू में पोलोनियम कितना लिया जाएगा? शुरू में पोलोनियम कितना लिया? लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 द एक्टिविटी इज A0। ठीक, लैम्डा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ कितना दिया पोलोनियम का? 138.6 डेज। ये लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 693 will be equal to ln of A0 upon this is the value A, activity upon activity, है कि नहीं? ये A बिठा देना यहां पे, इनिशियल एक्टिविटी पता चल जाएगा। इनिशियल एक्टिविटी पता चल गया। इनिशियल एक्टिविटी अगर पता चल गया है तो इनिशियल एक्टिविटी क्या है? लैम्डा इंटू N0। लैम्डा कितना है? 0.693 अपॉन 138.6 लैम्डा। और N0 कितना होगा? लेट द मास टेकन इज M। मान ले मास टेकन वॉज M0 डिवाइडेड बाय 210 मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये होगा N0। सॉल्व करके M0 निकाल लेंगे। कितना नियम चाहिए शुरू में? थोड़ा उल्टा सोच के देखो, इतना मास पोलोनियम का लेंगे तो इतना एक्टिविटी मिलेगा टाइम 0 पे। जो एक्टिविटी 693 डेज के बाद घट के कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। इतना एक्टिविटी जो A मिला वो इतना एनर्जी लिबरेट करेगा उस दिन, उसका 10%। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर? सवाल लिखो। Nuclei of radioactive element A are being produced at a constant rate alpha. Nuclei of a radioactive element A are being produced at a constant rate alpha. The element had a decay constant lambda. कहां तक लिखा? Element A are being produced at a constant rate alpha. The element had a decay constant lambda. The element has a decay constant lambda. Full stop. At time t is equal to 0. At time t is equal to 0, there are N0 nuclei of the element. At time t is equal to 0, there are N0 nuclei of the element. पहला बिट सवाल का कैलकुलेट कैपिटल N at a time t. कैलकुलेट कैपिटल N, अबे M नहीं, कैपिटल N एट अ टाइम T, मतलब T टाइम पे कितना न्यूक्लियस उसका बचा हुआ है। सेकंड बिट
Second bit, if alpha is equal to 2n naught lambda, calculate the number of nuclei after one half life of A. Calculate the number of nuclei after one half life of A, and also the limiting value of n, as t tends to infinity, limiting value निकालो as t tends to infinity. सॉल्व करो. ये थोड़ा अलग सवाल है. रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कांस्टेंट रेट अल्फा से बन रहा है, फॉर्म हो रहा है. अल्फा इज कांस्टेंट एंड इट हैड अ डीके कांस्टेंट लैम्डा. मतलब ये आगे लैम्डा से डिसइंटीग्रेट भी कर रहा है. द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज गेटिंग फॉर्म्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा. द न्यूक्लियाई हैज अ डीके कांस्टेंट लैम्डा, मतलब वो भी डीके कर रहा है. टाइम t इक्वल टू 0 पे n नॉट होगा तो n का एक्सप्रेशन निकालो. तो यार इसमें माइनस ऑफ dn बाई dt क्या? रेट लॉ हम नेट डिक्रीज बोल रहे. तो नेट डिक्रीज इज ऑलवेज डिक्रीज माइनस इंक्रीज. तो इट विल बी लैम्डा इंटू एन से तो ये डिक्रीज कर रहा है, और अल्फा रेट से तो कांस्टेंट है, इसको कर देंगे. माइनस ऑफ डी एन अपॉन लैम्डा एन माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डी टी. हाँ सही कर रहे हैं ना. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? लैम्डा एन माइनस अल्फा को अगर हम x मान लिए तो लैम्डा टाइम्स डी एन विल बी इक्वल टू डी एक्स. देयरफॉर डी एन विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन लैम्डा. तो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा एल एन ऑफ लैम्डा एन माइनस अल्फा. लिमिट कहां से कहां तक? टाइम एन कितना था? एन नॉट, और एन था तो लिमिट कहां से कहां तक बिठेगा? एन नॉट से लेकर एन, और इधर आ जाएगा टी. समझ में आ रहा है? रेट लॉ बनाए और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दिए इसे, है कि नहीं? अब लिमिट बिठा इसमें 1 बाई लैम्डा आ गया बाहर ना, तो लैम्डा टी ले जाओ उधर. लैम्डा टी विल बी इक्वल टू, इसे बिठाओ एन, तो आएगा एल एन ऑफ लैम्डा एन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा एन नॉट माइनस अल्फा. क्या? अच्छा माइनस भी है, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे. ठीक है, ये आ गया एन का एक्सप्रेशन बोलेंगे. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन. ये हम लोग बोलेंगे लैम्डा एन माइनस अल्फा इज ई की पावर लैम्डा टी. ये क्या आ जाएगा? लैम्डा एन नॉट माइनस ऑफ अल्फा ई की पावर माइनस लैम्डा टी. यहां से एन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, आएगा ना? n will be equal to lambda n naught minus alpha e की पावर माइनस लैम्डा टी प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये निकला किसी भी टाइम t पे n कितना बचा है. समझ में आ रहा है कि ऐसे ही चल रहा है? रेट लॉ लिखे वो समझ में आया? माइनस डी एन बाई डी टी इज लैम्डा एन माइनस अल्फा. उसके बाद कुछ नहीं किया, इंटीग्रेट कर दिया जैसे फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन करते हैं, और एन का एक्सप्रेशन निकाल लिए. पहला बिट हो गया. सेकंड बिट क्या कह रहा है? अगर अल्फा 2 एन नॉट लैम्डा हो जाए, अगर अल्फा 2 एन
अल्फा अगर 2n0 लैम्डा हो जाए तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? n विल बी इक्वल टू 2n0 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस, हाँ माइनस साइन, माइनस ऑफ दिस e की पावर माइनस डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। यस और नो? अगर हम अल्फा के बदले 2n0 लैम्डा बिठाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा? आएगा? पूछ रहा है कि हाफ लाइफ पे बता, हाफ लाइफ पे पहला पे n कितना होगा? पहला हाफ लाइफ पे n कितना होगा? निकाल लोगे ये? पहला हाफ लाइफ पे निकाल लोगे? और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना होगा? टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लैम्डा लैम्डा कट गया, जीरो कैसे रहे? लैम्डा लैम्डा कटा हुआ है। n का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? 2n0 माइनस n0 e की पावर माइनस लैम्डा t. If t tends to infinity, then e to the power minus infinity is what? 0. So n will be equal to टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n का वैल्यू 2n0 है। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल भी फ्रेम किए जाते हैं। क्लियर? जो आपको खुद इंटीग्रेट करके नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया? यस सर। ये अगर समझ में आया तो आगे डेफिनेटली समझ में आ जाना चाहिए। फिशन रिएक्शन, हेवी न्यूक्लियस ब्रेक मीडियम न्यूक्लियस में, सब यूरेनियम 235 92 बॉम्बार्ड किए, एक बना बेरियम 141 56, क्रिप्टन 92 36, फिर 3 1 एंड 0। ये कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है। और साथ में अराउंड 200 MeV एनर्जी लिबरेट होगा। मास डिफेक्ट जब निकालोगे तो जैसे ही एक न्यूट्रॉन हम लोग यूरेनियम 235 पे बॉम्बार्ड करते हैं तो साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन और बाहर आया, वो तीनों जाकर फिर 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करेगा। तो 3 किया तो 9, माने 1 से 3, 3 से 9, 9 से आगे बढ़ते बढ़ते इसको कंट्रोल करना क्या होता है कि मुश्किल हो जाता है। नहीं कंट्रोल करोगे तो ये एक बॉम्ब का रूप ले लेता है जिसमें टेम्परेचर फाइनली राइजेस अप टू 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर राइजेस अप टू 1 लाख। क्लियर? सच काइंड ऑफ द प्रोसेस, इफ इट इज अनकंट्रोल्ड देन इट इज एज अ एटम बम। क्लियर? परमाणु को कहते हैं एटम बम का इस्तेमाल। क्लियर? 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होते हैं, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर्स। मॉडरेटर इज हेवी वाटर। हेवी वाटर प्लांट कहां है इंडिया में? बॉम्बे में। हेवी वाटर प्रोजेक्ट, D2O का प्रोजेक्ट। हेवी वाटर क्या करता है कि वेलोसिटी न्यूट्रॉन्स का कम कर देता है, और कंट्रोल रॉड क्या करता है कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन कराओगे तो इट कैन बी यूज्ड इन पावर जनरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? यही सबसे कॉमन है, याद रखना। फ्यूजन रिएक्शन H1 plus 3H1 forms 4He2 plus 1N0। ध्यान रहे, फ्यूजन रिएक्शन, ये शुरू में एनर्जी की आवश्यकता होती है। शुरू में एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार वो एनर्जी देके फ्यूजन करा दिए
then the energy liberated after fusion process is much higher than the fission process. Therefore, hydrogen bombs are considered to be a very dangerous as compared to atomic bombs. Fusion, H bombs, समझ में आ रहा है? It can generate up to 10 lakh degree centigrade. Sun, definitely. Sun में यही रिएक्शन होता है. फ्यूजन प्रोसेस, फिजन भी चलता है. फ्यूजन के कितना एनर्जी चाहिए? हम लोग ये कहते हैं कि यहां पे अगर 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाओगे तो यहां पे आपको 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा फ्यूजन से. तो एनीवे एनर्जी लिबरेटेड इन फ्यूजन प्रोसेस इज हायर देन फिशन प्रोसेस. बाकी आप वो सारा चीज ट्यूटोरियल से पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. द रेडियोएक्टिविटी टॉपिक, रेडियोएक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री टॉपिक इज कंप्लीटेड टुडे.